Assalamu alaikum dear students and welcome to the Slate class of Physics A-Levels. In this video we will cover the paper 5 portion and the paper we have is May-June 23 paper 5-1 question number 1. So as you know कि question number 1 में आपको बच्चों एक सिनेरियो गिवन होता है, कुछ पार्शियल डायग्राम गिवन होती है और कुछ सिचुएशन गिवन होती है जिसके ऊपर आपने पूरा एक सिनेरियो बिल्डअप करना होता है, राइट? यू हैव टू डिजाइन अ होल एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आपने डायग्राम को इम्प्रूव करना होता है, डायग्राम को लेबल करना होता है एंड देन यू हैव टू राइट अ प्रोसीजर जिसमें आप ये बताते हैं कि व्हाट विल बी योर independent variable, what will be your dependent variable, what will be your control variables. Then the whole process goes on, right? So once again in this paper, I will show you how to solve this paper. So let's read this paper. So question says that a wooden cube of mass A is placed on an inclined plane. The cube is attached to the cylinder of mass B using a string that passes over a pulley as shown in figure 1.1. राइट? सो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन है विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, राइट? सो यहां पर आपके पास एक क्यूबिकल मास है जो कि आपने प्लेन के ऊपर प्लेस की हुई है एंड देन यू हैव दिस सिलेंड्रिकल मास विच इज पासिंग ओवर अ पुली, राइट? सो इन माय ओपिनियन दिस सिस्टम कैन स्लाइड ऑफ इन दिस डायरेक्शन if the mass of cube is more, right? And this system can slide off in this direction definitely if the weight of cylinder is more. Okay, let's see what is the scenario here. The angle between the plane and the horizontal is theta. ठीक है, याद रहे कि angle theta is being measured with respect to the horizontal. Initially the cylinder is held at rest. So याद रखिए कि सिलेंडर की इनिशियल वेलोसिटी इज 0. अगर आपने इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना हो या कोई इक्वेशन अप्लाई करना हो, डू कंसिडर दैट इट हैज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 0, राइट? द सिलेंडर इज रिलीज्ड. अगर सिलेंडर को रिलीज किया है, लेट्स सी कि ये किस डायरेक्शन में मूव करता है. द टाइम फॉर द सिलेंडर टू फॉल अ डिस्टेंस d is t. So cylinder is falling. Definitely mass of cylinder is more than the mass of the cube. So cylinder is falling downwards and it covers distance d in time t. So keep in mind कि अगर आपने डिस्टेंस को आगे जाके मेजर करना है तो उसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? You will use meter rule for that. And if you have to measure time, you have to use a stopwatch. It is suggested that t is related to theta by the relationship 2d over t square is equal to minus a h sin theta divided by a plus p minus ka times ka divided by a plus p. Now this equation is a bit complex. ठीक है, दो किस्म के सिनेरियोज आते हैं पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 1 में. किसी का प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स होता है, डायग्राम कॉम्प्लेक्स होती है, किसी की इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. सो इन दिस केस डायग्राम इज वेरी इजी. आपने सिलेंडर को रिलीज करना है, इट विल स्लाइड ऑफ, इट विल मूव डाउन बाय डिस्टेंस d इन टाइम t. ठीक है, इक्वेशन इज अ बिट ट्रिकी बट वी विल डिकोड दिस इक्वेशन वेयर h and k are constants. It is suggested that t and theta are related by the relationship. So out of these two variables, time t of falling and theta, angle between the horizontal and the plane, one of them is independent variable and the other one is dependent variable. So let's decide कि t और theta में से which is independent variable. So बच्चों आपको हर बार ही बताया जाता है कि आप ये डिसाइड करें कि कौन सा फैक्टर परफॉर्मर के एक्सपेरिमेंटलिस्ट के कंट्रोल में है, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. That angle is angle theta. So keep in mind that angle theta is independent variable and time of falling is dependent variable. ठीक है, और मुझे यहां से ये भी पता चल रहा है कि जब एंगल थीटा कम होगा तो टाइम ऑफ फॉलिंग भी कम होगा. खैर, वी आर गिवन विद दिस इक्वेशन 2d over t square is equal to minus ah sin theta divided by a plus b minus ka divided by a plus b. Plan a laboratory experiment to test the relationship between time t and theta. Draw a diagram showing the arrangement of equipment. Explain how the results could be used to determine the value of h and k. Very important thing. So basically, the goal of this experiment is ultimately to find out the value of h and k. In your plan, you should include the procedure to be followed, the measurements to be taken, the control of variables, which variables you will keep as constants, analysis of data and any safety precaution. ठीक है,
अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, इफ यू आर टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स विच इज थीटा एंड टाइम, यू हैव टू कीप ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है? डेफिनेटली यू विल कीप डिस्टेंस ऑफ फॉलिंग, डिस्टेंस डी जो वो फॉल करे, यू हैव टू कीप दैट कांस्टेंट। ठीक है, ऑल्सो यू हैव टू कीप mass of cylinder as constant and mass of cube as constant. ठीक है, if you are testing a relationship between two constants, one is theta and one is t, you have to keep all other variables constant. So आपने t और थीटा के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज थीटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आएगा दैट विल बी अलोंग विच एक्सिस? Generally independent variable is always along x axis, right? Or dependent variable time will be along y axis. अच्छा, how you will set up the diagram? बच्चों, डिस्टेंस d मेजर करने के लिए you will set up a ruler. आप यहां पर एक स्टैंड के साथ, रिटॉर्ट स्टैंड के साथ एक वर्टिकल रूलर एडजस्ट कर दे। थीटा कैसे मेजर करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आप ये वाली डायमेंशन मेजर कर लें, लेंथ मेजर कर लें यूजिंग मीटर रूल, और आप ये वाली लेंथ मेजर कर लें। ये वाली लेंथ जो है ये ऑपोजिट है, ये वाली लेंथ जो है एडजेसेंट है। थीटा कैन बी फाउंड यूजिंग द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, अदरवाइज व्हाट इज द अदर मेथड टू मेजर इट? अगर आपने ये वाला मेथड यूज नहीं करना, यू कैन सिंपली यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट? सो इस केस में डायग्राम तो बड़ी आसान है। ठीक है, मेरे माइंड में जो जो पॉइंट आता रहेगा कि मुझे फ्रिक्शनलेस पुली यूज करनी है ताकि पुली कहीं पर रुके ना। ठीक है, इफ आई हैव टू यूज अ फ्रिक्शनलेस पुली तो इसको मैं एडिशनल डिटेल में लिखूंगा। सो इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को थोड़ा सा डीकोड करते हैं। द इक्वेशन गिवन टू यू इज 2d over t square is equal to minus ah sin theta divided by a plus b minus ka divided by a plus b, right? अच्छा, which quantity you are going to plot along y-axis? Some form of time. ठीक है, तो 1 over t square को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे, we will write it as 1 over t square. तो याद रखना 2d दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पर जाके डिवाइड हो जाएगा, so this will be written as minus ah divided by 2d times a plus b sin theta plus minus ka divided by 2d दोनों वेरिएबल से डिवाइड होगा, तो यहां पर भी आप लिखेंगे 2d times a plus b. Now this is a bit complex, but this is how it works. Y is equal to mx plus c, right? The quantity that you will plot along y-axis is 1 over t square, and the quantity that you will be plotting along x-axis is sin theta. And by comparison method, your gradient will be equal to, gradient m is equal to minus ah divided by 2d times a plus b, and y-intercept is equal to minus ka divided by 2d times a plus b, right? ओके, अब आपको एक कंप्लीट इसका प्रोसीजर पता चल गया है। लेट्स राइट डाउन द डायग्राम एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, आप लोगों ने एग्जाम में इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करना है कि हेयर इज मैस, जिसको आपने सिलेंड्रिकल मैस जिसको आपने ड्रॉप करना है, एंड इट इज फॉलोइंग हाउ मच डिस्टेंस? इट इज फॉलोइंग डिस्टेंस d। ठीक है, और इस डिस्टेंस d को मेजर कहां से करेंगे? इस डिस्टेंस d को मेजर करेंगे यूजिंग मीटर रूल विच हैज बीन फिक्स्ड हियर ऑलरेडी यूजिंग अ retort स्टैंड। ठीक है, आपने यहां पर सपोर्ट यूज की है, यू कैन मूव द सपोर्ट टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, और एंगल थीटा मेजर करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज लेंथ हाइट h डिवाइडेड बाय एडजेसेंट विच इज लेंथ l, एंड वंस अगेन h और l को भी मेजर करने के लिए यू विल टेक द हेल्प ऑफ मीटर रूल, एंड देन यू आर यूजिंग दिस string and this is a cubical mass and this is the plane. बच्चों, आपने एग्जाम में डायग्राम को रूलर पेंसिल से ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करना।
एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द शेडिंग. आपके पास शेडिंग करने का टाइम नहीं होता. मीटर रूल की कैलिब्रेशंस ड्रॉ करने का भी टाइम नहीं होगा. यू जस्ट हैव टू लेबल दिस थिंग अ मीटर रूल. कैलिब्रेशंस ड्रॉ करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा. ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो क्या होगा, आप इस केस में सिलेंडर को ड्रॉप करेंगे और जब ग्राउंड को हिट करेगा वो टाइम को आप मेजर कर लेंगे यूजिंग अ स्टॉप वॉच. ठीक है, यू कैन टेक द एवरेज ऑफ दैट एज वेल. ओके, सो डिफाइनिंग द वेरिएबल्स. सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस इज एंगल थीटा. इसको हम अपनी मर्जी से सेट करें. डिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम ऑफ फॉलिंग, दैट इज टाइम t. एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल, controlled variable is that variable which you have to keep constant throughout. आपको mass of cylinder को भी fix रखना है, control रखना है, आपको cube के mass को भी fix रखना है. but आप वो वाली चीज select करें जो equation में reflect हो रही है, वो है distance d. every time the cylinder is falling by same distance d, right. so variables को define करने के लिए 2 marks होते हैं. okay, moving on the procedure. अच्छा बच्चों, आपने स्टॉप वॉच ड्रॉ नहीं करनी. अगर किसी एक्सपेरिमेंट में वर्नियर कैलिपर आता है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज आता है, आपने ड्रॉ नहीं करना. यू जस्ट हैव टू राइट दैट यू आर यूजिंग स्टॉप वॉच. प्रोसीजर में लिखेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस पेपर इज टू राइट अ प्रोसीजर. सो प्रोसीजर हैज 4 मार्क्स along with the diagram. So in procedure you have written that set up the apparatus as shown in the diagram. बच्चों, आपकी डायग्राम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए. ठीक है, आपकी डायग्राम में एक एक चीज क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है. सो सेट अप द apparatus as shown in the diagram above. मेजर लेंथ L एंड H. जब भी आपने कोई चीज मेजर करनी है, डू मेंशन द apparatus और द पीस ऑफ डिवाइस दैट यू आर यूजिंग. तो यहां पर हर एक चीज के साथ इंस्ट्रूमेंट जरूर आएगा. फॉर एग्जांपल, मेजर द लेंथ L एंड H यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट हियर? इंस्ट्रूमेंट हियर इज मीटर रूल. कैलकुलेट थीटा. अच्छा, इस केस में मैं थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं, मेजर नहीं कर रहा हूं. सो डेफिनेटली कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा. अगर आप थीटा को मेजर कर रहे होते तो आपने लिखना था मेजर थीटा यूजिंग अ प्रोटेक्टर, और उस प्रोटेक्टर को डायग्राम में ड्रॉ भी करना था. बट हियर आई एम सेइंग कैलकुलेट थीटा यूजिंग द रिलेशनशिप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाइट h डिवाइडेड बाय लेंथ L. राइट, एक बार दोबारा डायग्राम से देखें. यहां से मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं. tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज हाइट h डिवाइडेड बाय लेंथ L, और यहां से tan इनवर्स लेके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा. ओके, मूविंग ऑन. Measure mass A and mass B using digital balance. Once again measurement थी तो साथ इंस्ट्रूमेंट भी जरूर मेंशन करना है. Measure distance D using, definitely आपने मीटर रूल को अलाइन किया हुआ है, and you will avoid parallax error while measuring these distances. Release the cylinder. ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना. सिलेंडर विल फॉल इन सम टाइम, और उस टाइम को आपने रिकॉर्ड करना है. ओके, release the cylinder from rest and measure the time of falling distance d with stopwatch. right, जो चीज आपने मेजर की उसके साथ उसका इंस्ट्रूमेंट भी मेंशन किया. keep mass A and B and distance D constant throughout the experiment. so basically all 3 of them are controlled variable. तो एक बार दोबारा बताया कि आपने throughout the experiment इनको चेंज नहीं करना. adjust plane to vary theta. आपने प्लेन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट चेंज करनी है और आपका एंगल वेरी होगा. देन यू विल हैव टू मेजर न्यू एंगल एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस होल एक्सपेरिमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एंगल. रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा एंड रिकॉर्ड द डाटा इन द टेबल बिलो. नाउ दिस टेबल सेज दैट यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ रीडिंग्स. जनरली व्हेन यू आर प्लॉटिंग ग्राफ यू हैव टू टेक एटलीस्ट 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ टेबल की कॉलम को शो करना है, कॉलम हेडिंग्स को शो करना है. हमने कोई डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर रहे. एंगल थीटा इन डिग्रीज. T1 टाइम ऑफ फॉलिंग एक बार मेजर करें, टाइम ऑफ फॉलिंग दोबारा मेजर करें, टाइम ऑफ फॉलिंग की एवरेज लें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बिकॉज इक्वेशन में आपने एक्स एक्सिस पर साइन थीटा को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पर 1/t को प्लॉट करना है. ठीक है, कीप इन माइंड के इस केस में टाइम पीरियड नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ऑसिलेशंस, इट इज जस्ट टाइम ऑफ फॉलिंग. नाउ एनालिसिस ऑफ डाटा. मैंने आपको बताया कि आपने अपनी गिवन इक्वेशन को अलाइन करना है इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इक्वेशन को रीअरेंज करके मैंने पहले भी लिखा था, आपके सामने दोबारा से लिखी हुई है. अलाइनमेंट के बाद आपको ये पता चला कि y एक्सिस पर जो क्वांटिटी प्लॉट होगी दैट विल बी 1/t², और x एक्सिस पर जो क्वांटिटी प्लॉट होगी दैट इज sin थीटा. सो बाय कंपैरिजन मेथड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट m इज -ah डिवाइडेड बाय 2da + b, राइट, and the value of y intercept is -ka
divided by 2d times a plus b, right? Now plot a graph of 1 over t square. 1 over t square किस एक्सिस पे आएगा? 1 over t square y एक्सिस पर आएगा. जो क्वांटिटी पहले लिखते हैं वो y एक्सिस पर आती है. Against sin theta, right? Your graph will be a straight line with gradient equal to minus ah divided by 2d plus ab and y-intercept equal to minus ka divided by 2d times a plus b, right? अब जरा प्रोसीजर पे दोबारा जाइए क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में इट इज क्लियरली रिटन दैट प्लान अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम t एंड एंगल थीटा, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट, explain how the results could be used to determine the value of h, and k it has 1 mark in analysis of data. So how you will measure the value of k and h? देखिए जरा ध्यान से. Gradient is equal to minus ka divided by 2d times a plus b. So h is equal to, इस gradient वाली इक्वेशन में से h को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाइए. h is equal to minus 2d times a plus b divided by a multiplied by gradient, where d is distance of falling, a and b are masses of cube and cylinder respectively, and a times gradient. ये सारा कुछ आप लोगों ने प्री मेजर रखा है. From here you will get the value of h. Now to measure the value of k, आप लिखेंगे k is equal to minus h multiply by y intercept. ठीक है. So basically आपने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से आपने y intercept वाली इक्वेशन में से you made k subject of the formula, और उसके बाद आपने 2d minus 2d times a plus b divided by a multiply by gradient को minus h से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. So this is it. You have found the value of h and k in terms of gradient and y-intercept, right? Moving on. Safety precaution. You have to write one safety precaution. तो इस केस में एक clear safety precaution ये है कि एक cylindrical mass fall कर रहा है. It can hit your foot and damage your foot. तो उसको avoid करने के लिए आप नीचे simply एक sand tray या cushion place कर ले, या safety shoes पहन ले ताकि आपका foot जो है वो injury से prevented रहे. Right, so use sand tray to catch the falling cylinder to avoid foot injury. Simply place a sand tray. Additional details. बच्चों, these are the additional procedures जो आपने ऊपर skip कर दिए थे, right? And this could be some points to improve the results of your experiment. You have to write at least 5 points in bullet forms या numbering form में लिख दें. These will score you 5 marks, right? So the first one is use light gates to measure time t accurately and reduce the value of error in time. but जब small time को stopwatch से measure करेंगे तो human reaction error की वजह से उसमें percentage error is large. So replace that stopwatch technique with light gate method ताकि आप time को accurately measure करें और उसमें error reduce हो. So the next point is increase the falling distance. Definitely जब falling distance increase होगा आपका time भी increase होगा, और जितनी वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसमें परसेंटेज एरर उतना ही रिड्यूस हो जाता है. सो इंक्रीज द फॉलिंग डिस्टेंस d टू इंक्रीज टाइम ऑफ फॉलिंग एंड टू रिड्यूस एरर. थर्ड पॉइंट इज यूज इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स खराब हो जाए. सो यूज inextensible string to avoid increase in length. Right? The next point is clean the pulley. Sometimes आपकी पुली पड़ी रह जाती है तो उसकी हिंज के ऊपर या उसकी सरफेस के ऊपर रस्टिंग हो जाती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है. So you have to use a frictionless pulley. For that you can clean it using a sandpaper. आप इसकी lubrication भी कर सकते हैं using mobile oil. Clean the pulley with sandpaper to reduce the friction. Right? And the last point is place a fixed mark on a track and release the cube from the same mark every time. ठीक है. आपको हाइट डी हर बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप ट्रैक पे ही एक पॉइंट लगा लें. आप क्यूब को हर पॉइंट से हर टाइम उसी पॉइंट से रिलीज करेंगे तो वो सेम डिस्टेंस डी फॉल करेगी. सो दिस इज इट अबाउट दिस प्रैक्टिकल. अच्छा बच्चों, आप ज्यादा पेपर्स की वीडियोस देखें और मैक्सिमम क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और बाद में मेरे प्रोसीजर्स के साथ टैली करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ पेपर 5. फॉर देन, थैंक यू.